خصوصی آج کی بزم کے محترم شاہین نیازی صاحب. قلم، کتاب، محبت، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. شاہین نیازی. علی بھائی، پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے 1 گھنٹے کی کوئی بات کی اور پھر کہا کہ ٹائم بہت کم ہے، تو کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ میں 5 منٹ میں ختم کروں؟ میں بالکل نہیں چاہ رہا. بڑا ضروری ہے پوچھنا، کیونکہ بعد میں پھر یہ بخشتے نہیں ہیں. صاحب صدر کی اجازت سے. اور ایک بات میں کہنی ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ مجھے منیر بھائی کو ہوتے ہوئے میں مہمان خصوصی بنوں. میں چھوٹا بھائی ہوں اور ماشاءاللہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے کراچی پاکستان. میں یہ یعنی دل میں شرمندہ ہو رہا ہوں کہ ان کو ہوتے ہوئے مجھے مہمان خصوصی بنایا گیا. بہرحال اللہ خوش رکھے سب کو. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، ایاز صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہ عزت دی مجھے. ڈاکٹر صاحب کا میں بہت مشکور ہوں. ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اخوت کے معنی بتایا. اخوت بھائی چارہ. کراچی میں تو بہت سارے بھائی ہوتے ہیں، بھائی روکی ہوتے ہیں. یہاں جب لوگ مجھے بھائی کہتے تھے تو میں ان کو ایک شعر پڑھ کے سناتا تھا کہ بھائی آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں چھوڑے ہیں اور بھائی بہت. بھائی مجھے دوست کہو، بھائی مت کہو. لیکن پہلی دفعہ امجد صاحب کی کتاب پڑھ کے مجھے انہوں نے یاد کرایا کہ بھائی چارہ تو وہ تھا جو مدینہ میں جس کا مظاہرہ ہوا، اور اخوت ان کی جو تنظیم ہے اس کی روح بھی یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جس طرح اپنا آدھا حصہ جو ہے وہ مہاجرین کو دینے پہ، مکہ کے مہاجرین کو انہوں نے پیش کر دیا تھا، یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. دوسرا شکریہ میں ان کا یہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے مذہب کے بارے میں یاد کرایا کہ اسلام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ سٹی اسٹیٹ آف مدینہ میں تو ہر مذہب کے لوگ رہتے تھے اور ان کے ہر طرح کے حقوق تھے اور ان کا خیال کیا جاتا تھا. چنانچہ ان کی تنظیم میں عیسائی بھی، ہندو بھی، ہر مذہب کے لوگ جو ہیں ان کا دامن ان کے لیے وہاں ہے. آج کل کے زمانے میں یہ چیز اور یہ اسلام کی عظمت رفتہ کو اس طرح زندہ کرنا میرے خیال میں ایک بہت بڑا کام ہے. اب میں ان کی کتاب کی طرف آتا ہوں. مجھے بھی ڈاکٹر صاحب باہر ملے تو مجھے انہوں نے تھوڑا تشکیق تھی ان کے لہجے میں، مجھے کہا کہ آپ نے میری کتاب پڑھی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ it has really touched me. میں تو ایک بیکار سا آدمی ہوں، کتابوں سے محبت کرتا ہوں، ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں، میرے احباب جانتے ہیں اس بات کو. تو جب آپ بہت زیادہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں تو وہ جو ہے نا ذہن دماغ میں ایک گلٹ ہو جاتا ہے. There are very few books which really touch you. ڈاکٹر صاحب کی کتاب نے مجھے ٹچ کیا بہت. ڈاکٹر صاحب کا انٹلیکٹ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب اب آج کل یہ وہ زمانہ ہے جب ہر چیز ڈسکور ہو چکی ہے. اب وہ مارکو پولو اور ابن بطوطہ والا زمانہ نہیں ہے. بات صرف ادراک کی ہے. ہر آدمی ہم میں سے ہر چیز جانتا ہے. انفارمیشن جتنی ہمیں اویلیبل ہے وہ اس سے پہلے کے دور کے انسان کے پاس نہیں تھی. لیکن ہمیں کتنا ادراک ہے اس چیز کا وہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب پڑھ کے احساس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب گئے امریکہ گئے، ان کی وہاں انہوں نے اپنے ذہن میں جو سوال اٹھے، جو سوال ان سے کیے گئے، اس کے جواب انہوں نے دینے کی کوشش کی. وہاں ہارورڈ یونیورسٹی کے مائیکل چو نے ان سے کہا کہ جناب انٹرسٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. گرامین بینک کے ڈاکٹر یونس خفا ہو گئے. 40% انٹرسٹ لیتا ہے گرامین بینک. ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی انٹرسٹ کے بغیر تو. تیسری بات ڈاکٹر صاحب کی مجھے اچھی لگی ان کا فوکس ٹون ہے.
डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि सियासत के करीब तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन सियासतदानों के बगैर गुजारा नहीं है। उन्होंने सियासतदानों के सामने भी अपने हाथ फैलाए। सर सैयद की बात मुझे याद आ गई कि अगर मुझे घुंघरू बांध के नाचना पड़ा तो भी मैं अपने कॉज के लिए जाऊंगा। सियासतदानों के पास गए। ही इज फोकस्ड ऑन हिज मिशन। फोकस से मुझे याद आ गया अनीक भाई की इजाजत से कि हिंदू एपिक जो है महाभारत, उसमें उनका जो उस्ताद था वो उनको तीरंदाजी सिखा रहा था। तो एक शागिर्द को बुलाया, उसने कहा भी देखो दरख्त पे तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उसने कहा जी तना है, टहनियां हैं, पत्ते हैं, एक पंछी बैठा हुआ है उसने। दूसरे को बुलाया, उन्होंने कहा तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा जी बहुत से पत्ते हैं और एक पंछी बैठा हुआ है। तो अर्जुन जो बहुत अच्छा मशहूर तीरंदाज है, उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा जी मुझे तो सिर्फ पंछी नजर आ रहा है। तो डॉक्टर साहब जो है ना, इज सो फोकस्ड, वो ये नहीं देखते किससे मांग रहे हैं, कौन है। डॉक्टर साहब अपना पैगाम, अपना मिशन बहुत फोकस्ड तरीके से कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब से मैं जब मिला अभी तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं एक वाक्या आप सुनाऊंगा, आपको इस वक्त नहीं सुनाता क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत बड़ा डिस्कवरर है। एक दफा आपने सुन लिया तो आपको मजा नहीं आएगा। वो वाकया इस तरह है कि कुछ दोस्त बैठे हुए थे, मैं भी उस महफिल में बैठा हुआ था। तो बात हो रही थी, वो एथियस्ट थे लोग, यकीन नहीं करते थे खुदा पे, और बात रसूल सल्लम की बात हुई क्योंकि डॉक्टर साहब की निस्बत हाथ वही पकड़ा हुआ है उन्होंने। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो तौजीहात हैं कि भाई ये इंसान जो है वो देना चाहता है और लेना चाहता है, लेने वाले लेना चाहते हैं, उनकी इज्जत नफ्स जो है वो रहनी चाहिए, या अखुवत का काम आगे किस तरह चलेगा भी नहीं। उसके जवाब में मैं उनको ये किस्सा सुनाना चाह रहा था डॉक्टर साहब को कि उन्होंने कहा कि भाई ये अल्लाह के नबी नहीं थे, नौजुबिल्लाह, बड़े यानी कोई ज़हीन आदमी थे। तो एक साहब बोले कि देखिए उस वक़्त अरब और खास तौर पे मक्का, उसकी इज्जत और तकरीम 360 बुतों की वजह से थी। अरब के एक तरफ रोमन एम्पायर थी, सीरिया जिसका ईस्टर्न रोमन एम्पायर, एक तरफ ईरान था। मल्टी उस वक्त एशिया वाज द वर्ल्ड। तो कौन आदमी होगा जो इस वक्त आके कहेगा कि जी खुदा एक है और ये तुम्हारे बुत जो हैं वो सब के सब झूठे हैं? वो नबी हो सकता है। तो ये जो यकीन है ये डॉक्टर साहब ने वहां से हासिल किया, उस जात से। ये एक नूर का सिलसिला है जो चल रहा है। जब तक डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि आप इस दामन को पकड़े रखेंगे, आपका मिशन कभी नाकाम नहीं हो सकता। मगरिब की दुनिया आप रियलाइज कर रही है कि उनका सिस्टम फेल हो चुका है। जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज, बहुत मशहूर चीफ इकोनॉमिस्ट था वर्ल्ड बैंक का, अब वो खुद वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज के खिलाफ लिखता है और वो इस वक्त उसकी किताबें जो हैं दुनिया के लीडर्स जो हैं वो बाइबल समझ के पढ़ते हैं। तो वो लिखता है कि नेवर हैव सो फ्यू टेकन सो मच फ्रॉम सो मेनी, कि 1% लोग जो हैं वो तो सिर्फ यही डिस्कशन करते हैं कि हम कौन से जेट खरीदेंगे। हमारे पड़ोस में जो रहता है उसका हेलीकॉप्टर जब उतरता है तो बहुत शोर मचाता है, और दुनिया के बाकी लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं हमारा फ्यूचर महफूज है या नहीं, हमारा छत हमारे सर पे रहेगी या नहीं, हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे या नहीं। उसने कहा, उसकी किताब है द ग्रेट डिवाइड, वो कहते हैं दुनिया इतनी बुरी तरह तकसीम हो चुकी है। ये जो अब अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आया है, एक्चुअली वो फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट है, इस ग्रेट डिवाइड की फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट है। तो वेस्टर्न दुनिया ये जान चुकी है कि हमारा सिस्टम जो है वो हमको तबाह कर रहा है, लेकिन उसका जवाब उनके पास नहीं है। डॉक्टर साहब जो जवाब उनके पास ले गए
वो इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं जो कि इस हल को सामने नहीं आने देते। एक दिन वो लोग शायद रियलाइज करें, वो चौंक रहे हैं इस बात पे, अभी वो रूहानी तक उसको तजर्बा कर रहे हैं। लेकिन मुझे वो फ्लेचर स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी की प्रोफेसर किम विल्सन की बात याद आती है जो डॉक्टर साहब से उन्होंने कही थी, You took up a complex problem and made it so human. इसमें बड़ी विजडम है इस बात पे। आप देखिए डॉक्टर साहब के बारे में जो भी कोई बात सुनता है तो वो कहता है कि जी ये तो ख्वाब लगता है, लेकिन जब उन्हें बताया जाता है कि इट इज एक्चुअली हैपनिंग। 2 दिन पहले मैं अपने डेंटिस्ट के पास गया तो वो बड़े खुश्क से आदमी है, उन्हें मैंने ये बातें बतानी शुरू की तो वो बड़े इमोशनल हो गए। तो मैंने कहा भाई साहब आप ये किताब ले लें, इसको पढ़ लीजिएगा। तो उनका नहीं आप तो बात कर रहे थे, रुक क्यों गए? मैंने कहा भाई आप इतने जज्बाती हो गए, मेरा गलत दांत निकाल दिए। तो डॉक्टर साहब की बातें जो है ना वो मूव करती है। मैं डॉक्टर साहब आखिर में एक छोटे से वाक्य पे अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मैं शायद कन्वे कर पाया हूँ या नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो कुछ कर रहे हैं ये उनको अल्लाह की अता है, ये बख्शिश है। इसकी आप रीजन, इसकी रैशनलाइजेशन में मत जाइए। हमारे डिपार्टमेंट में एक साहब थे, एक वकील हैं, हमारे ऑफिसर्स, अगर मैं नाम दूंगा तो वो जान लेंगे। वो एक दिन मेरे पास आया और मुझे कहा उन्होंने कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पे एक किताब लिख रहा हूँ, तो आपको पेश करूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इसमें जो अहम बात वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये इस बात को पसंद फरमाया कि मैं किताब लिख रहा हूँ। कुछ अर्से बाद वो एक पैम्फलेट सा ले आया, छोटा सा पैम्फलेट था। मैंने उसको देखा और उसमें सारी वही बातें लिखी हुई थी जो हम पढ़ते रहते हैं और बड़ी तफसील से पढ़ते रहते हैं। तो मेरे दिल में एक थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना उनके लिए वो पैदा हुई, इस्तेज़ा कह लीजिए, हकारत नहीं तो अल्लाह ना करे नौज़ुबिल्लाह। तो पैम्फलेट लेके मैं घर आ गया। अब ये बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मैंने कभी पब्लिक गैदरिंग में नहीं की, लेकिन डॉक्टर साहब की किताब पढ़ के मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि मैंने वो पैम्फलेट अपने कमरे में रखा है और थोड़ी देर के बाद मेरा पूरा घर जैसे गुलाब के फूलों की खुशबू से भर गया। ये मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, महकने लग गया। बल्कि मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि ये तुम कहाँ से मनो फूल उठा के ले आए? मैंने कहा भाई मैं तो कोई फूल नहीं लाया। और वो 5 मिनट वो खुशबू रही तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा मुझे बताया गया है कि ये कबूलियत हमारी है, तुम्हारे दिल में जो हकारत पैदा हुई उस पे तो मैंने तौबा की। तो इस बात में अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, बहुत बहुत